Jai Hind everyone, I hope this message finds you fit and fine. My name is Nikita and I welcome you all to my daily current affairs classes. Friends, today is 27th of February and we are going to discuss every important news in this video. Or this is your first one-stop solution of current affairs. So let's get started without any further delay with the first news. So friends, first we'll see the defense and security. Okay, so Mitra seminar. What is this Mitra seminar? CDS General Anil Chauhan जी इन्होंने inaugurate किया है the annual seminar at the College of Defence Management in Secunderabad focusing on multi-domain integrated technological empowered resilient armed forces. So here you need to remember the full form of Mitra. I'm repeating multi-domain, integrated, technologically empowered, resilient armed forces and convergence warfare. So you need to remember that Mitra seminar inaugurated by whom? CDS General Anil Chauhan. Second, we'll talk about Prahar policy. So the Ministry of Home Affairs released Prahar, India's first comprehensive national counter-terrorism policy. So this is India's first comprehensive national counter-terrorism policy, Prahar. Okay. Second, we'll talk about Dharma Guardian 2026. So friends, India and Japan joint military exercise Dharma and Guardian is underway in Uttarakhand. Where? In Uttarakhand. Operation Himrahat. What is this Operation Himrahat? Friends, a rescue operation by Indian authorities successfully assisted 46 tourists. ठीक है? Next. Now we'll see technology and business and environment. BioAsia 2026, the premier biotechnology and life science summit began in Hyderabad. So here you need to remember कि BioAsia 2026 जो प्रीमियर है ये इसकी समिट कहाँ हुई है हैदराबाद में हुई है. ग्राफीन पॉलिसी, केरला अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर ग्राफीन की एडवांस मटेरियल. ओके, तो ये ग्राफीन पॉलिसी कहाँ पे लागू हुई है? केरला में लागू हुई है. बी कॉरिडोर्स की बात करते हैं. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने इनिशिएट किया है इंडिया की पहली बी कॉरिडोर टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी, जिससे हम क्या कर सके? बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकें. एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, अ रिपोर्ट बाय IEEFA एंड इम्बर नेम्ड उत्तर प्रदेश, Andhra Pradesh and Rajasthan as top performers in the state energy transitions. So here you need to remember that who are the top performers in energy transition report. So Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Rajasthan. I hope this is clear to all of you. Now we'll talk about the international and national affairs, friends. So India Israel free trade agreement. Talks regarding the India Israel free trade agreement began when? In New Delhi. कहाँ पर हुए हैं? न्यू दिल्ली में हुआ है, क्योंकि वी नो दैट मोदी जी 2 days की विजिट पर हैं इंडिया एंड इसराइल पर. सो अब मोदी जी को क्या मिलने वाला है? कोई ऑनर मिलने वाला है. तो उनसे इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज होगी आई विल कवर देम विद यू. State of Hormuz. So Iran temporarily closed the Strait of Hormuz during talks with the USA. तो हमको पता है जो यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो सब पर क्या करना चाहते हैं? अपना कब्जा करना चाहते हैं. सबसे कह रहे हैं कि तुम लोग चुप बैठो, जो हूँ मैं ही हूँ. तो इन्होंने क्या किया है? ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया है after talking to USA. Now we'll talk about the HPV vaccination drive, a national vaccination campaign targeting 14-year-old girls for HPV was launched. मतलब 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको टारगेट किया गया है. दिस HPV जो वैक्सीन है उसको टारगेट करने के लिए. अगर हम बात करते हैं भावांतर योजना की, so friend this is very important news. The scheme benefiting nearly 80 lakh farmers was in news focus. सबसे पहले तो आपको ये याद करना है भावांतर भुगतान योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी? It was started in 2017. ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? फार्मर से रिलेटेड है. अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो आरबीआई ने एस्टेब्लिश किया एक हाई सिक्योरिटी डेटा वेयर इन ओडिशा, आई थिंक ओडिशा के भुवनेश्वर में. नेक्स्ट, कमेमोरेशन की बात करते हैं तो February 26 इज ऑब्जर्व एज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ वीर सावरकर.
नेक्स्ट, अब थोड़ी नेशनल न्यूज की बात कर लेते हैं हम। पीएम इन इजराइल, जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन इजराइल फॉर अ हाई प्रोफाइल ऑफिशियल विजिट टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक टाइज इन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। सो केरला की बात करते हैं, तो केरला रीनेमिंग, द यूनियन कैबिनेट ऑफिशियली अप्रूव द proposal to rename the state of Kerala to केरलम। अब हम केरला को किस नाम से जानेंगे? केरलम के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीईआरटी कंट्रोवर्सी की। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है एन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सेक्शन दैट कंटेन रेफरेंसेस टू करप्शन इन द जुडिशरी। ओके, तो एनसीईआरटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बैन किया है? एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सेक्शन है दैट कंटेन रेफरेंसेस टू करप्शन इन द जुडिशरी। फोर्थ न्यूज की हम बात करते हैं सीबीएसई लैंग्वेज पॉलिसी। सीबीएसई ने अनाउंस किया एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के लिए थर्ड लैंग्वेज अदर देन 2 इंडियन लैंग्वेजेस फॉर क्लास 6 स्टूडेंट फ्रॉम 2026 to 27। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हिंदी इंग्लिश में तो पढ़ाई होती है मेरे ख्याल से, इसके अलावा जो उनकी थर्ड लैंग्वेज है वो किसी को भी वो चूज कर सकते हैं। और ये किस क्लास से स्टार्ट होगी? क्लास 6। इनसेट 4D लॉन्च, क्या है ये? इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एडवांस वेदर सैटेलाइट इनसेट 4D। तो ये जो इनसेट 4D है ये वेदर सैटेलाइट है। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम श्रीहरिकोटा टू इनहेंस मॉनसून प्रेडिक्शंस। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रहार स्ट्रेटेजी की। तो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिलीज इंडिया फर्स्ट पॉलिसी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी टाइटल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। रेलवे मॉडर्नाइजेशन, द गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक मैसिव रेलवे मॉडर्नाइजेशन प्लान वर्थ रुपीज, इसकी याद करने आपको 2.5 लाख करोड़ रुपीज का हम क्या करने वाले हैं? रेलवे को मॉडर्नाइज करने का एक प्लान बनाएंगे। डिजिटल रुपी पायलट, इंडिया ने लॉन्च किया है अ सीबीडीसी बेस्ड फूड सब्सिडी पायलट यूजिंग द डिजिटल रुपी इन पुडुचेरी फॉर PMGKAY स्कीम। तो याद रखना है आपको, डिजिटल रुपी जो है फूड सब्सिडी पायलट हमने कहाँ पे लॉन्च किया है? पुडुचेरी में लॉन्च किया है। धर्मा गार्जियन, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड द धर्मा गार्जियन, तो 2 देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया एंड जापान की। ये इसका 7th एडिशन है और कहाँ पे हुआ? चौबरिया, उत्तराखंड। ऑपरेशन हिम राहत की बात करते हैं, तो इंडियन आर्मी एंड लोकल अथॉरिटीज लॉन्च ऑपरेशन हिम राहत टू रेस्क्यू स्ट्रेंडेड टूरिस्ट इन ईस्ट सिक्किम। तो ऑपरेशन हिम राहत सबसे पहली बात तो कहाँ पे किया गया है? सिक्किम में। किसको? टूरिस्ट को रेस्क्यू करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमी एंड अपॉइंटमेंट्स फ्रेंड्स। तो नीति आयोग सीईओ निधि छिब्बर took charge as the new CEO of नीति आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये फीमेल है। नीति आयोग की सीईओ कौन बनी? नीति छिब्बर बनी है। आरबीआई डेटा सेंटर, आरबीआई ने क्या किया है कि स्टेब्लिश किया है इसका सेकंड मेजर ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में। India Israel Free Trade Agreement. So the first round of negotiation for India Israel Free Trade Agreement officially began in Delhi. अब मोदी जी वहां गए हैं तो अब काम वहां पे स्टार्ट हो गए हैं। कार्बन मार्केट, तो कार्बन मार्केट में क्या पढ़ेंगे हम? इंडिया एंटर द फाइनल फेज ऑफ लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट कंप्लायंस बेस्ड कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? इसको एंटर कर दिया है। सोलर टैरिफ्स की बात करते हैं, तो द यूएसए ने इम्पोज किया है अ स्टीप 126% टैरिफ्स ऑन सोलर इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, इम्पैक्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेड। ओके, ना हम सेक्स बात करते हैं साइंस स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट सेशन की। सो HPV वैक्सीनेशन, द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ फ्री नेशन वाइड HPV वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर 14-year-old गर्ल्स टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इस एज याद करना है लड़कियों की 14 ईयर। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर वाज अपॉइंटेड द यूएन ग्लोबल यूनाइटेड नेशन का जो ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन है। इसके लिए किसको चूज किया गया है? सचिन तेंदुलकर। T20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड secured a spot in the T20 वर्ल्ड कप semi-finals after defeating पाकिस्तान। ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज। वाटर ऑन मार्स, क्या है ये वाटर ऑन मार्स? साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है द डिस्कवरी ऑफ सिग्निफिकेंट वाटर आइस डिपॉजिट ऑन मार्स। पानी के कुछ डिपॉजिट्स मिले हमको मार्स पर।
a major breakthrough for space exploration. breakthrough मतलब एक नई खोज. नेशनल आरोग्य मेला, नेशनल आरोग्य फेयर, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है द नेशनल आरोग्य फेयर 2026 इन शेगांव महाराष्ट्र टू प्रमोट आयु सिस्टम. तो ये आयु सिस्टम जो है उसको प्रमोट करने के लिए हमने नेशनल आरोग्य फेयर स्टार्ट किया है. नाउ फ्रेंड्स, कुछ एडिशनल करंट अफेयर्स भी मैंने इसमें ऐड किए हैं. एज यू कैन सी हियर, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, a mid-year report suggests India's ranking has improved by 4 positions due to better distribution through a ई-श्रम पोर्टल इंटीग्रेशन. जब से हमने ये ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है तब से हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में थोड़ी सी रैंक क्या हो गई है, ठीक हो गई है. फर्स्ट डिजिटल कोड, केरला इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस डिजिटल कोड इन एर्नाकुलम. ओके. द न्यू बॉर्डर क्रॉसिंग, इंडिया और म्यांमार अग्री हुए हैं द रीओपन द मोरे तामू बॉर्डर ट्रेड पॉइंट फॉर एसेंशियल गुड्स. ठीक है, मोरे तामू आपको याद रखना है, दिस इज अ प्लेस. ओके, बॉर्डर ट्रेड पॉइंट है. G7 Summit 2026, Italy officially invited India as an outreach country for the upcoming G7 Summit. Women in STEM, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है. द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी launched the विज्ञान विदुषी 2026 program to support 10,000 girls students in research. Okay, nice news. Blue इकोनॉमी पॉलिसी, सो द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, इन्होंने क्लियर किया है द नेशनल ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी टू सस्टेनेबल डबल द जीडीपी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मरीन रिसोर्सेज बाय 2030. नेक्स्ट, BCCI central contracts. The BCCI announced the 2025-26 central contracts, elevating 3 young fast bearers to Grade A. ग्रीन हाइड्रोजन बस, इंडिया की जो पहली लॉन्ग हॉल ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड इंटरसिटी बस है वो फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड दिल्ली एंड जयपुर. यूनेस्को हेरिटेज की बात करते हैं तो द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स वर ऑफिशियली नॉमिनेटेड बाय इंडिया फॉर UNESCO World Heritage List for 2026 cycle. Please mark and remember this news. This is very important news. Cyber Surakshit Bharat. MITI organized the 50th CISO, Chief Information Security Officers Deep Dive Training Program to tackle rising AI-led cyber threats. So friends, see what I cover. I not only cover the date news, मतलब 27 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 27 की न्यूज़ कवर होगी, 26, 25 और इसके आगे वाली जो डेट होगी आई कवर देम. इसके बाद में आपको करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ. इसका मतलब ये नहीं आपको सिर्फ एक दिन में 10 ही न्यूज़ पढ़नी है, क्या पता वो 10 न्यूज़ में से एक भी क्वेश्चन ना फंसे आपके एग्जाम में. आई कवर ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो भी आपके फेब्रुअरी मंथ में हुई हैं. सो फ्रेंड, दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड द इम्पोर्टेंट न्यूज़. अब हम जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं. Fifth National MSME Council meeting reviews RAM program progress. Union Minister launches Udmi Bharat portal at MSME technology transfer. Friends, just give me a minute. Just, I'm coming. Okay. Where has it gone? Okay. So let's continue, friends. Sorry for the delay. Fifth National MSME Council meeting review ramp program progress. Union Minister launches उद्यमी भारत पोर्टल at MSME. So friends, अब बात कर लेते हैं हम उद्यमी भारत पोर्टल क्या है.
तो क्या ये एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसने को डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एज अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल एमएसएमई रिलेटेड सर्विसेज। एमएसएमई से रिलेटेड जितनी भी सर्विस है उसके लिए हमने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। ओके, एमएसएमई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं हम मीटी। मीटी ने क्या किया है, मीटी हैज लॉन्च्ड ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज टू ड्राइव परमिशन ब्लॉकचेन सॉल्यूशन फॉर डिजिटल गवर्नेंस। क्या है फ्रेंड्स, चलो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो श्री एस कृष्णन आईएएस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज। कहाँ पर, दिल्ली में। इसको इम्प्लीमेंटेड किसने किया है, सीडेक, याद रखना है बस इसको, इसमें कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट अगर हम इसके इंपॉर्टेंट की डोमेन्स की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या सेक्टर शामिल हैं, तो इसमें ई प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, पावर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लैंड रिकॉर्ड्स, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल इसमें शामिल हैं। सो प्लीज मार्क इट। इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार कमेंसेटेड बकलो हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही याद करना है कि इंडिया और यूएस दोनों क्या करते हैं, बकलो जो ये वज्र प्रहारी किन किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया एंड यूएस के बीच की एक्सरसाइज है, और ये इसका कौन सा एडिशन है, ये इसका 16 एडिशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया की और जीसीसी की गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल लॉन्च फॉर्मल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस विद साइनिंग ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट इन न्यू दिल्ली। फ्रेंड ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इसने और इंडिया ने क्या साइन किया है, जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं हम। कैबिनेट ने अप्रूव किया है 9,000 करोड़ रुपीस मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट टू एड 307 किलोमीटर नेटवर्क कैपेसिटी अक्रॉस 4 स्टेट्स, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको क्या करना है, याद करना है। मैं आपको 4 स्टेट के नाम भी बता देती हूँ, प्लीज मार्क देम। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। आई एम रिपीटिंग, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड बिहार। Kaziranga National Park emerges as major stronghold for endangered fishing kit with 57 individuals recorded in first scientific survey. So friends, Kaziranga National Park, as you already know that कहाँ पर है, ये असम में है, और ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फेमस फॉर हार्बरिंग 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स इंडेंजर्ड वन और राइनो। यहाँ पे एक सिंग वाला गेंडा, वन ऑन राइनोसोरस पाए जाते हैं। तो इसमें क्या किया है, एक मेजर स्ट्रॉन्गहोल्ड किया है फॉर इंडेंजर्ड फिशिंग किट। फिशिंग किट किस कैटेगरी में आती है, इंडेंजर्ड, जो रेड डेटा लिस्ट है उसकी इंडेंजर्ड कैटेगरीज में आती है, विद 57 इंडिविजुअल रिकॉर्डेड इन फर्स्ट साइंटिफिक सर्वे। इसका पहला साइंटिफिक सर्वे हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिहार की असेंबली ने पास किया है 4 बिल्स, ठीक है, इन 24 मिनट्स। 4 बिल 24 मिनट्स में इन्होंने पास किए हैं, इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ 1887 ब्रिटिश एरा सिविल कोड एक्ट। ओके, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिविल कोड जो है ये क्या है। तो फ्रेंड, इसमें क्या बताया है, ये जो एक्ट था बंगाल, पहले मैं बता देती हूँ इनमें कौन कौन से बिल जो हैं वो पास हुए हैं। बंगाल आगरा एंड असम सिविल कोड्स एक्ट 1887, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन एक्ट बिल 2026, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिल 2026, बिहार म्युनिसिपल बॉडीज बिल 2026। सो COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या किया है, जो कौन है, जनरल भूपेंद्र द्विवेदी हैं, इन्होंने भारत रंगभूमि दर्शन एक्सपेडिशन कहाँ पर, नेशनल वॉर मेमोरियल में इसको क्या किया है, फ्लैग्स ऑफ किया है। ठीक है, कब किया है, डेट याद रखना आपको, 25 फरवरी में किया है। नेक्स्ट, मुंबई के जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नेम एशिया पैसिफिक की बेस्ट फॉर डिपार्चर्स इन 40+ मिलियन पैसेंजर कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। तो याद रखना है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, मुंबई में है। TEC एंड IIT खड़गपुर ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एडवांस जॉइंट रिसर्च इन इंडिया का रोल इन 6G NTN एंड टेलीकॉम standardization. तो here you need to remember that telecommunication engineering center और जो IIT है, IIT खड़गपुर ने साइन किया है एक MOU। CDS जनरल अनिल चौहान ने इनॉग्रेट किया है
annual seminar on Mitra vision for multi-domain technology empowered resilient armed forces. Here you need to remember the full form of Mitra. I'm repeating, multi-domain technology empowered resilient armed forces. नेक्स्ट हम बात करते हैं IGSTC स्ट्रेटेजिक कॉन्क्लेव कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है. IGS है ना, you need to remember that IGSTC इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर. फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पर, दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया. IAF ने एंड EAC ने क्या किया है, IAF एंड EAC ने कप है जो रेसेस किया है, हेल्ड विद ग्रैंडर एट रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब. श्री हरदीप सिंह गिल और श्री कर्म सिंह कर्मा अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी. ओके, यू कैन रिमेंबर दिस. यूनियन मिनिस्टर श्री सोमन्ना लॉन्चेस कॉफी टेबल बुक ऑन कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन जर्नी ऑफ 1000 शील्ड्स. किसने लॉन्च किया इसको, वी सोमन्ना ने लॉन्च किया है. NBEMS secures Guinness World Records title for most viewers of an AI in healthcare live stream on YouTube पर. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रख सकते हैं. हम बात करते हैं NBEMS क्या है, तो फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं इसको, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस. ग्रेड रिकॉर्ड इन्होंने क्या किया है, बनाया है. CBIC क्या करने वाली है, टू होस्ट नेशनल सिंपोजियम ऑन कस्टम्स रिफॉर्म्स एंड इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2026 कहाँ पर, इन दिल्ली में. इंडिया और नेपाल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया टू बूस्ट कोऑपरेशन इन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज. South Central Railway launches next generation rail parcel A for seamless digital parcel services. डिजिटल पार्सल सर्विसेज को लेकर जो यहाँ का सेंट्रल साउथ सेंट्रल रेलवे ने क्या लॉन्च किया है, रेल पार्सल ए. पीएम नरेंद्र मोदी जी becomes rare global leader honored with top civilian awards from both Israel and Palestine. ये तो होना ही था, ये वैसी न्यूज हो गई, ये तो होना ही था. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्पीकर ऑफ द नीस्ट मेडल. ठीक है, ये कहाँ का इनको अवार्ड मिला हुआ है. बाकी इनके जो अवार्ड्स मिलेंगे मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर गडकरी लॉन्चेस रिवाम्प्ड राजमार्ग प्रवेश पोर्टल फॉर फास्टर ट्रांसपेरेंट NOC अप्रूवल्स ऑन नेशनल हाईवेज. मध्य प्रदेश टू एक्सटेंड भावंतर स्कीम टू मस्टर्ड मतलब क्या होता है, सरसों. अनाउंसेस 600 रुपीज, है ना, 600 रुपीज पर क्विंटल बोनस ओवर MSP फॉर उड़द. चलो हम इसको थोड़ा सा और डीप में मैं आपको इसको समझा देती हूँ. भावंतर फॉर मस्टर्ड का पहले समझ लेते हैं हम क्या है. सो इट विल कवर द प्राइस डिफरेंशिएशन. ये क्या करेगा, प्राइस डिफरेंशिएशन है जब मार्केट रेट्स गिर जाते हैं फॉर MSCP से जब नीचे आ जाते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन अवेट्स फ्रॉम फॉर्मल अप्रूवल फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. Who is your Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare? श्री शिवराज सिंह चौहान जी. अब हम बात करते हैं बोनस जो है वो उड़द के लिए क्या है. स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है एक एडिशनल 600 पर रुपीज क्विंटल ऑन टॉप ऑफ द सेंट्रल MSP अनाउंस फॉर उड़द. मैं आपको बता देती हूँ भावांतर भुगतान योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी, 2027 में. हमने किसके लिए, फार्मर्स के लिए, फ्रॉम लो क्रॉप प्राइसेस, ताकि जो लो क्रॉप प्राइसेस हैं उनके लिए हमने एक योजना शुरू की थी. इसका जो पर्पस था वो क्या था, टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल्स फॉर फाइनेंशियल लॉस व्हेन मार्केट प्राइस फॉल बिलो. जब मार्केट की जो प्राइस है MSP से भी कम हो जाती हैं तो उसको रोकने के लिए हमने क्या किया था, इसको लॉन्च किया था. ठीक है, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत होती है. और मैकेनिज्म एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. अगर जो MSP है वो 5000 कुंटल रुपीज प्रति कुंटल है एंड मार्केट रेट जो है वो 4500 कुंटल है रुपीज का, है ना, कुंटल का रुपीज की कुंटल का है, तो गवर्नमेंट पेज 500 रुपीज एज अ डिफरेंस. इसका जो गवर्नमेंट खुद से पे करेगी, इसलिए हमने इसको भावांतर भुगतान योजना को लॉन्च किया.
North East Spring Festival and Madhya Dakshini Festival 2026 kicks off in Dimapur to celebrate cultural unity. तो नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर, और जो मध्य दक्षिणी फेस्टिवल है कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? दीमापुर में स्टार्ट हुआ है, नागपुर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, Japan sets 2031 timeline for deploying surface-to-air missiles on Yonaguni Island near Taiwan. ठीक है, तो जापान ने सेट किया है 2031 तक ये क्या करने वाले हैं? डिप्लॉय करने वाले हैं सरफेस टू एयर मिसाइल ऑन Yonaguni Island near Taiwan. So friend, that's how we have completed all the important current affairs of today. Now we'll see them in MCQ form. Let's get it started without any further delay. Who was the theme? Oh, sorry. What was the theme of the Strategic Conclave 2026 hosted by the Indo-German Science and Technology Center? So, take a minute to think, then give me the correct answer. So, the correct answer is option number 2, Integrated Water Resource Management. Question number 2, when was an Employees State Insurance Corporation established? Take a while and think. So the correct answer is option number 2, 1952. In Feb 2026, the Global Era of Maharashtra through Unity and Trust event in Nagpur was organized by which organization? So the correct answer is option number 3, Brahma Kumaris. Which two dignitaries were appointed as members of the National Commission for Safai Karmcharis in February 2026? The correct answer is option number A, Shri Hardeep Singh Gill and Shri Karm Singh Karma. Which organization secured the Guinness World Records title for the most viewers of an artificial intelligence in healthcare lesson live streams on YouTube in February 2026? The correct answer is option number 3, National Board of Examinations in Medical Sciences. Next बात करते हैं, name the next generation digital platform launched by the, as I already told you, South Central Railway to provide seamless online parcel services. So correct answer is option number 1, Rail Parcel App. Which award was conferred upon Prime Minister Narendra Modi by the Israeli Parliament in February 2026? Very important news. So correct answer is option number 2, Speaker of the Knesset Medal. Which revamp portal was launched by the Union Minister Nitin Gadkari to ensure faster and sorry friends, faster and transparent NOC approvals on national highways? So correct answer is option number 4, Rajmarg Pravesh. The Northeast Spring Festival 2026 was inaugurated in which state? So the correct answer is option number 1, नागालैंड. नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया है. तो इन विच ईयर वाज द भावंतर भुगतान योजना लॉन्च्ड by the Madhya Pradesh government? So the correct answer is option number 17, and Bhavantar 2017 Bhavantar Bhugtan Yojana is related to farmers. Which platform was launched as a unified one-stop digital platform integrating MSME related services during the 5th National MSME Council meeting in February 2026? The correct answer is option number 1, Udmi Bharat Portal. कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज टू प्रमोट, किस चीज को प्रमोट करने के लिए? ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस फॉर डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया. तो ये सब किसके अंदर आना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन. द करेक्ट आंसर नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. So the 16th edition of exercise Vajra Prahar commenced between two nations at Baklor, Himachal Pradesh in February 2026. So the correct answer is option number 3, India and US. India और किसने formally launched negotiations for a comprehensive free trade agreement with the signing of a joint statement in February 2026. So the correct answer is option number 2, Gulf Cooperation Council. Which country along with India successfully held its inaugural joint working group meeting on agriculture in February 2026? The correct answer is option number 2, Kenya. Most important question.
The cabinet approved the 3 multi-tracking railway projects worth rupees 9,072 crore rupees in February 2026, covering which 4 states? So correct answer is option number 2, Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar and Jharkhand. The fishing kite survey in Kaziranga National Park. Kaziranga National Park is in Assam state, primarily utilize which method for population estimation? So the correct answer is option number 4, re-analysis of camera tray by catch images from tiger surveys. No, this is not a correct answer. Option number 2, satellite taking off individual kites. Which international airport was named Asia Pacific's best airport for departures at the 2025 Airport Service Quality Awards? So here you need to remember the correct answer is option number 3. As we discussed that Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport is named Asia Pacific Best Airport for departures in 2025. Which expedition was formally flagged in the General Upendra in by General Upendra Dwivedi at the National War Memorial in February 2026. So the correct answer is option number 2, Bharat Ranbhumi Darshan Expedition. Next, the Bihar Civil Codes Bill 2026 replaces which colonial era legislation? So the correct answer is option number 4, Bengal, Agra and Assam Civil Codes Act 1887. फ्रेंड्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बिहार सिविल कोर्ट्स ने 24 मिनट्स में 4 जो बिल है उनको पास किया है. इट हैज बिकम द हेडलाइन. So friends, that's how we have completed our today's session. Now we'll do the revision session. So in the revision session, I will tell you the yesterday's important news in a brief. That Kerala has changed its name. It's Kerala. फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है वो कहाँ पर होने वाले हैं? रायपुर, छत्तीसगढ़. Prahar, as I already told you that this is a terrorism policy. India France amending protocol to double taxation avoidance convention. ठीक है. Splendor of Hoyshal's and न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की हमने बात की है इम्पैक्ट समिट के अंतर्गत. गुलाब्स जाइंट टॉर्टोइज रीइंट्रोडक्शन. टॉर्टोइज समझते हो क्या होते हैं? कछुआ होता है. नेक्स्ट, बैंकिंग में अगर हम बात करते हैं तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से हमने रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो हमने डिस्कस की थी कल. इंडिया अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी. ठीक है. और बाकी हमने पढ़ा था वन बैटल आफ्टर अनदर विंस बेस्ट फिल्म एट द बाफ्टा. बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है कैंपन. सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो कल रिवर्स की थी. एक बार हम इसके एमसीक्यू फटाफट लगा लेते हैं. एमसीक्यू इज द बेस्ट मेथड to revise current affairs. Try to solve MCQ as much as possible you can. So which country has signed a traditional knowledge digital library access agreement with India in February 2026 to prevent biopiracy and boost cooperation in intellectual property rights? So correct answer is option number 1, Brazil. On February 2026, Union Cabinet ने approve किया है the proposal to rename Kerala to which official name? Kerala. So now Kerala is the official name of Kerala. What is the total estimated cost sanctioned by the Union Cabinet for the expansion of civil enclave at Srinagar International Airport? So correct answer is option number 3, 16,077 crore rupees. What is the minimum support price fixed by the Union Cabinet for rosewood for the 2026-27 marketing season? So the correct answer is option number D, for 6,500, sorry, 5,650 rupees per quintal. Okay. The 7th edition of annual bilateral joint military exercise Dharma Gazian commenced at which location? So the correct answer is option number 1, Chaugatiya, Uttarakhand. Friends, I already told you that. अच्छा, let me ask you one question. वज्र पहाड़, वज्र पहाड़ इंडिया एंड किस कंट्री के बीच में होता है? और इसका जो एडिशन है वो बता देती हूँ, हिमाचल प्रदेश में होने वाला है वज्र पहाड़ हुआ है. Which country has become the one of the first to introduce a groundbreaking twice yearly lenacapavir injectable for HIV prevention? The correct answer is option number 1, Zimbabwe. In Feb 2026, Union Cabinet has increased the equity investment limit for power grid per subsidiary from 5,000 rupees crore rupees to कितना हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 7,500 crore rupees. Who has been designated as a UN Global Champion
for the road safety campaign titled Make a Safety Statement. The correct answer is option number 3, Sachin Tendulkar. यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 3.33 किलोमीटर एक्सटेंशन ऑफ द अहमदाबाद मेट्रोज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फ्रॉम गिफ्ट सिटी टू विच लोकेशन? ऑप्शन नंबर ए, शाहपुर. February 2026 में how many interventions were launched by the Union Minister Piyush Goyal under the Export Promotion Mission? Answer is option number 2, 7. Union Minister of Health and Family Welfare J.P. Nadda inaugurated a liver transplant unit and a state-of-the-art robotic surgery system at which of the following facilities? The correct answer is option number 2, AIIMS Bhubaneswar. 8th edition of Advantage Healthcare India AHCI 2026 was organized by the which of the following entities? The correct answer is option number 4, FICCI, है ना? Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. So a 6-member team from which of the following institutions successfully submitted at Mount Aconcagua, the highest peak in South America, in February 2026? So you need to remember the correct answer is Nehru Institute of Mountaineering, NIM, Uttarkashi Jawaharlal Institute of Mountaineering and Winter Sport, Gym and WS, Pahalgam. Mount Aconcagua, the highest peak in both the southern and western hemisphere, stands at an approximate elevation of how many meters? Here you need to remember the correct answer is option number 3, 6961 meters. What is the name of the new national counter-terrorism policy and strategy recently launched by the Ministry of Home Affairs to tackle evolving terror threats? So correct answer is option number 3, Prahar. How many key pillars from strategic framework of the new national counter-terrorism policy and strategy titled Prahar? So correct answer is option number 3, 7. According to ICRA projections, India's year-on-year GDP growth for quarter 3 of financial year 25 to 26 is expected to moderate to what percentage? So correct answer is option number 2, 7.2 percentage. In which city has the Reserve Bank of India establishes new seismic resilient high security data center Feb 2026? The correct answer option number 2, भुवनेश्वर. कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ऑर्गेनाइज किया है नेशनल SC/ST हब NSSH अवेयरनेस प्रोग्राम इन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. Which district hosted the National Arogya Fair 2026 organized by Ministry of Ayush in February 2026? The correct answer is option number 1, Shrigaon. So friends, that's how we have completed our all the current affairs. Thank you so much for listening to me so patiently. Thank you and keep watching my videos. Thank you.